Properties of division. Okay, how to solve the division? What is the meaning of division? Equal parts and sharing. We will distribute your friends, your colleagues. Okay, so equal parts. Division means equal part या sharing. And the multiplicand, which what is the multiplicand, what is the multiplier, and what is the product. Okay, have you done your last classes now? What is the definition of dividend? What is the definition of multiplicand? Sorry, divisor, quotient, and remainder. Sorry, dividend, divisor, quotient, and remainder. What is the dividend? The number to be divided is called the dividend. The number is to be divided. जिस number को हम divide करते हैं, this is called the dividend. And the number by which division is made is called the divisor. और जिस number से हम divide करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा divisor. And what is the quotient? जो हमारा result आता है, जो आप रिजल्ट ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग, जो डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा आंसर होता है, उसे हम कहते हैं क्वोशंट. व्हाट इज द रिमाइंडर? आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर, डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग बचता है, वो हमारा क्या कहलाता है? रिमाइंडर. ओके, इज दैट क्लियर? आई थिंक सो. इज दैट क्लियर? माय लास्ट क्लास आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन्स. Yes, write down in your copy right now. After that, I will see your copies. Properties of division. Okay. Property. This is the one property. Okay, on dividing a non-zero number by one, the quotient is a number itself. अगर हम किसी भी डिजिट्स को वन से डिवाइड करते हैं, तो हमारा हमेशा हमारा जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगा, वो क्या आएगा? जो आपका नंबर है. नंबर इटसेल्फ मतलब जो आपका डिविडेंड है. ओके, ऑन डिवाइडिंग on dividing a non-zero number by one, एडमिट करने के बाद गायब हो जाते हैं आपसे. By one, the quotient is the, please write down in your copy right now, number itself. Okay, I'm explaining with example. X 86 multiply by 86, sorry, divide by where is division? Percentage है. स्लैश लगा दूं, स्लैश भी नहीं है. Divided by 1 equals to 86. 86 को अगर हम 1 को अगर हम किसी भी डिजिट से अगर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा नंबर है वो ही नंबर आएगा. अब 15 को अगर हम 1 टाइम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 को 15 से करेंगे तो हाउ मेनी टाइम? 15 टाइम. अगर हम 6 को करेंगे 1 टाइम तो कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम. जो डिजिट है आपका, जो डिविडेंड है आपका, वो ही आपका आएगा. क्योंकि अगर मैं 1 टाइम करूँ, इट मींस मैं कितनी बार रिपीट करूंगी उसको, जो जितना आपका डिजिट है मैं उसको उतनी बार रिपीट करूंगी. ओके, next properties.
On dividing a non-zero number, on dividing a non-zero number by itself, the quotient is quotient obtained is 1. ओके अगर मैं 15 को 15 टाइम्स अगर डिवाइड करती हूँ, 15 को मैं 15 टाइम्स अगर डिवाइड करती हूँ, तो हाउ मेनी टाइम्स विद गो विथ 1 टाइम. 15 को 15 टाइम करने पर कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा. अगर मैं 806 को 806 से डिवाइड करती हूँ, तो हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम. ओके. Example is 809 divided by 809 equals to 1 time. Okay. Next properties. Yes, division by 0. That means no meaning of 0. Okay. Third, division by 0 has no meaning. Okay. अगर किसी भी डिजिट्स को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स नो मीनिंग. 0 का कोई भी मीनिंग नहीं होगा. विद एग्जांपल, जैसे 50 divided by 0 equals to 0. Is that clear? Do you have any problem? Please send in chat box. Yes, to mute all. Only we unmute that we have to speak. Rest of mute all. Attendance not to be taken. Always taken to recording. Do the best of you. Thank you, sir. Yes, ma'am, school copy. Yes, please write down in your school copy as like your class work. Next, properties. Okay. Up next, just rules for the divisions. Yes, division by 10, 100 and 1000. If we are divide the 10, 100 and 1000, what will we do? Okay, that is an easy technique. I will explain you. Division
Division by 10, 100 and 1000. So use the easiest technique. Please write down in your copy along with me. Okay. So rule number 1, dividing a number by 10. On dividing a number by 10, the question is obtained by removing the one digit. जो आपका उसका जो आपको क्या करना है, जो उसका वन डिजिट है वो रिमूव करना है, एंड द नंबर एट द रिमाइंडर इज वन डिजिट ऑफ द नंबर. जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या रह जाएगा. एक सिंपल टेक्निक में आपको एक्सप्लेन विद एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन इन योर कॉपी रूल. On dividing a number by 10, the question is obtained by removing the ones digits from the number one digit from the number and the remainder is the ones of the numbers. Okay, is that clear? I just repeat again. Okay, on dividing a number by 10, the question is obtained by removing the one digits. तो जब हमें हमारा आंसर लेना है, जो हमारा obtain मतलब जो हमारा क्वेश्चन मतलब जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा डिवाइड का आंसर आएगा, रिमूविंग द वंस डिजिट, उसमें से हमें क्या रिमूव करना है, सिर्फ वंस डिजिट को रिमूव करना है, एंड द रिमाइंडर इज द वंस ऑफ द नंबर. जो वंस डिजिट को, जो हमने डिजिट को रिमूव किया है, वो हम किसमें शो करेंगे, वो हम रिमाइंडर में शो करेंगे. ओके, is that clear? More clear after that with example. Okay, I will show you. First of all, you write down in your copy properties of divisions. Up, just clear my screen. No space is it here? Please, I just remove it. Please note down in your copy. Just example here. You see, 10 divided by 10 इसे पे ठीक है. Okay, 2008. 2008. Okay, so what will we do? Just remove the ones place. Just remove the ones place as it is in the question place. Write down in the question place as it is same. Just write is here 200. हमें क्या किसको रिमूव करना है, सिर्फ हमें वंस प्लेस को रिमूव करना है. तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन जो हमारा आंसर है ये हो गया 200
10 कितने टाइम्स जाएगा 20 में? 10 goes to 2 times 20. Okay, then after what will we do? Subtract 20 minus 20 out minus 20 is equals to 0. Just bring down the next digit. 0 0 and next digit also 8. It will be go for the 8? No. So what is the remainder? 8 is the remainder. It is possible 10 out of 8? No. So that is my remainder. मैं वापिस एक्सप्लेन कर रही हूँ 10 को हमें 2800 में क्या करना है डिवाइड करना है तो 10 हाउ मेनी टाइम्स विल गो टू कितने टाइम्स जाएगा वो 2 टाइम जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 20 क्योंकि अगर 10 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा 30 इज अ ग्रेटर 30 क्या हो जाएगा 20 से ग्रेटर हो जाएगा या तो हम इक्वल लेते हैं या हम लेस देन उससे या तो हम कम लेते हैं या इक्वल लेते हैं हम उससे ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम 10 माइनस 6 कर सकते हैं 10 माइनस 6 कर सकते हैं बट 6 आउट ऑफ 10 नहीं कर सकते ठीक है सेम थिंग हम इसमें या तो इक्वल लेंगे डिवीजन में ऑलवेज या हम इससे कम लेंगे हम इससे ज्यादा कभी नहीं ले सकते तो अगर मैं 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा क्या आता है आंसर 30 आता है तो 30 इज ग्रेटर देन सो मैंने विल वी गो विथ 2 टाइम्स तो हम किसके साथ जाएंगे हम 2 के साथ जाएंगे 2 टाइम करने पर मेरा क्या आया 20 then 20 minus 20 equals to 0 then मैंने bring down the next digit मैंने नीचे कौन सी digit लाई second digit लाई but 8 अब हमारे पास कोई digit नहीं है तो 10 में 8 is not sufficient value इसके पास कोई मतलब 10 के अंदर हम 8 नहीं जा सकता है बहुत less than है इससे so what will would to have stop is here and then will this is my quotient and this is my remainder. I think is that clear? Please write down. I may explain with another example. Okay, this is quotient and this is remainder. So जो हमारा properties of division है वो हमें क्या explain करी वो हमें explain करी है कि अगर हमें किसी भी किससे multiply करना है अगर हमें 10 से multiply करना है तो हमें कौन से place को remove करना है only ones place को remove करना है जो हमारी properties है वो हमें explain कर रही है कि अगर हमें 10 से किसी भी चीज को डिवाइड करना है तो हमें जो डिजिट है जो हमारा डिविडेंड दिया हुआ है उसमें से जो वंस प्लेस है उसको क्या कर देना है रिमूव कर देना है उसको किस में कर देना है रिमाइंडर में डाल देना है बाकी के जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जो रिमेनिंग डिजिट है वो किया जाएगा वो हमारा क्वोशंट हो जाएगा और जो वंस प्लेस को आपने रिमूव किया है ना जो 8 को वो हमारा क्या कहलाएगा रिमाइंडर ठीक है प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी after that with example was 100 and 1000 also okay I'm explaining with 100 and 1000 also please note down okay start with clear my drawings okay next properties है हमारी on dividing by 100 अगर हम किसी को डिवीजन करते हैं हम 100 से
तो अब एक्सप्लेन विद एग्जांपल, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, फॉर्मूला सेम ही होगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हम वंस प्लेस को हटा रहे थे वहां पे हम कितने डिजिट को रिमूव करेंगे, हम 2 डिजिट को करेंगे। 100 के लिए हम कितने डिजिट को रिमूव करेंगे, हम 2 डिजिट को रिमूव करेंगे। और 1000 के लिए हम 3 डिजिट को रिमूव करेंगे। जो इसकी डेफिनेशन है वो आपकी बुक में है, तो जिस नोट डाउन सेम, बस जैसे मैंने अभी आपको 10 की लिखाई है सेम वैसे ही 100 की है, सेम 1000 की है, बस जो रिमूव प्लेसेस है वो 2 है 100 में और 1000 में 3 है। हाउ मेनी जीरोस इन 10? 1 जीरो। सो कितना डिजिट को हम रिमूव करेंगे, हम 1 डिजिट को रिमूव करेंगे। हाउ मेनी जीरोस इन 100? 2 जीरो। तो हम कितने डिजिट को रिमूव करेंगे, 2 डिजिट को। हाउ मेनी जीरोस इन 1000? 3 जीरोस। तो हम कितने को रिमूव करेंगे, 3 को। ओके, तो आई एम एक्सप्लेनिंग विद एग्जांपल। 100 का मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सिर्फ एज एग्जांपल। नंबर है 9785। ओके, हमें डिवाइड करना है 100 प्लेस से। सो हम इस पे अपना रूल अप्लाई करेंगे। हमने क्या बोला, जब हमारे पास 100 हो तो हम कितने डिजिट्स को रिमूव कर देंगे, वंस और टेंस। 2 डिजिट्स को किसमें लेके जाएंगे हम, ब्रिंग डाउन द रिमाइंडर। और जो 9 और 7 जो 2 डिजिट रिमेनिंग बचे हैं उसको हम किसमें शो करेंगे, कोशेंट में। हमारा वो क्या होगा, आंसर होगा। जस्ट 100 को अगर हम 9 टाइम्स डिवीजन करते हैं तो 100 हाउ मेनी टाइम्स। ओके, डिवाइजर इज 3 प्लेसेस। डिवाइजर के कितने डिजिट है, 3। तो हमें डिविडेंड के भी कितने प्लेसेस लेने पड़ेंगे, हमें 3 प्लेसेस लेने पड़ेंगे। ओके, तो 100 को अगर 978 से मैं करती हूँ तो हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम। क्योंकि अगर मैं 10 टाइम्स करती हूँ तो कितने आते हैं, 1000 आएंगे। 1000 इज ग्रेटर देन 978 से। 978 से वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो हम या तो इक्वल लेते हैं या हम उससे लेस देन लेते हैं, हम उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। सो हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगा हमारा, 9 टाइम्स। सो राइट हियर 9 टाइम्स। आफ्टर दैट आई विल कॉल। ओके, 9 टाइम हाउ मेनी, 900। okay, what will we do after that, subtract. We will subtract 978, subtract minus 900. So remainder is 78. 8 minus 0 equals to 0. 8. 7 minus 0 equals to 7. So is it here 78? Bring down next digit. Bring down the next digit. 5. 5. 785. Sorry, 785. How many times? Okay, how many times will go to 100? 7 times. Because of that, if will go to the 8 times, that will be greater sign, greater than. Okay, अगर हम 8 times करेंगे तो 100 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 800। तो हम कितने टाइम्स करेंगे, हम 7 टाइम करेंगे। क्योंकि 100 को अगर मैं 7 टाइम करती हूँ तो मेरा आंसर 100 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 700। सो 7 and write down is here 700. After that, what will we do? Subtract. Okay.
and 785 subtract minus 700. 5 minus 0 equals to 5 and 8 minus 0 equals to 8. So remainder is 85. So remainder is 85 and question is 97. What is the rules of what is the properties of hundreds? जो हमारी जो properties थी, जो हमारा अगर हम किसी भी चीज को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से करते हैं, 1000 से करते हैं, अगर हम 10 से करते हैं तो हम लास्ट का जो वन प्लेस है उसको रिमूव करके हम उसको किस में शो करेंगे? रिमाइंडर में. और अब ये हमारा 100 से हाउ मेनी डिजिट इन 100? 2 डिजिट्स. ठीक है. हाउ मेनी जीरो? 2 जीरो. सो हमने कितने कितने रिमूव करे? हमने 2 रिमूव करे. ठीक है. तो दिस इज क्वेश्चन. योर नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल. तो हमने 100 प्लेस पे कितने कितने रिमूव करे? 2 डिजिट 2 प्लेसेस रिमूव करे और उसको हमने किस में शो करा है? हमारे रिमाइंडर में. दिस इज क्वेश्चन. एंड दिस इज रिमाइंडर. ठीक है. अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कौन सा कितना डिविडेंड में से हम सिर्फ 1 डिजिट को रिमूव करेंगे. और अगर हम किसको करते हैं? अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट को करेंगे? 2 डिजिट को करेंगे. और अगर हम 1000 से करते हैं तो कितने डिजिट को करेंगे? हम 3 डिजिट को करेंगे. ओके. आई एम एक्सप्लेन विद 1000 आल्सो. यस मैम, दिस इज 785. वेल डन नव्या. यस Adiba. Well done Adiba. Riddhi Siddhi. Navya Singh. Property and rule. Ma'am, please give one more. Okay. Okay, is that clear? Any problem? Next, I explain with 1000 also. I'm explaining with 1000 also. Digit is why are you joining late बेटा? आप लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? जब क्लास एंड होने पे आ रही है. 107 107 246. Okay. So in 1000 place, how many zero in 1000 place? 3 0. So how many digit will be removed? How many digit will be removed? 3 digit. So 246 हम क्या शो करेंगे? हम रिमाइंडर करेंगे और जो रिमेनिंग बचा है 107 वो हमारा क्या होगा? क्वोशिएंट होगा. वेरी सिंपल टेक्निक है. अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो लास्ट का 1 प्लेस है उसको हम रिमाइंडर में शो करेंगे. अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट है उसको हम रिमूव करके रिमाइंडर पे शो करेंगे. अब हम 1000 से कर रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट्स को हम रिमूव करके किस में करेंगे? हम रिमाइंडर में शो करेंगे. मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ. 1000, हाउ मेनी डिजिट इन 1000? 4 डिजिट. So we will take the 4 digit in dividend also. So 1000 one time, because of that अगर मैं 2 times लेती हूँ तो वो कितने times हो जाएगा? 2000 times. So we will take always equal या less than, not be greater than. So is it right here? one time, and is it here 1000? After that we will do subtract. Okay. After subtraction,
72 रिमाइंडर क्या बचा आफ्टर 1072 में से अगर मैं 1000 को माइनस करूंगी तो मेरा रिमाइंडर आएगा 72. Then after bring down the next digit. Bring down the next digit 4, but 4 is a 3 digit and 1000 is a 4 digit. So we'll next another bring down the next digit also 4 and then 6. Okay. So how many times? 1000 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 7000. अगर 1000 को मैं 8 टाइम करती हूँ तो हमारा कितना आएगा 8000. तो 7246 से वो क्या हो जाएगा हमारा ज्यादा हो जाएगा. और डिवीजन में हम हमेशा क्या लेते हैं या तो इक्वल लेते हैं या हम लेस उससे कम लेते हैं. तो हमें कितने टाइम्स करना पड़ेगा वी विल गो विद 7. तो हमें किसके साथ जाना पड़ेगा हमें 7 के साथ जाना पड़ेगा. यस एंड द रूल्स ऑफ सेकंड मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि अगर मैं एक डिजिट ले रही थी अगर मैंने 72 के बाद जब मैंने ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट 4 जब मैंने 4 लिया था बट इट्स नॉट ए सफिशिएंट डिजिट ये हमारे लिए 4 डिजिट का है और हमारे पास कितनी डिजिट है 3 तो मेरे को एक नेक्स्ट डिजिट और लेने के लिए मुझे ऊपर क्या लगाना पड़ता है ऑलवेज कोशेंट में हम ऑलवेज क्या पुट करते हैं 10 ऑल्सो. ठीक है हमेशा हम क्या लगाते हैं 10 जब भी हम हमको एक डिजिट की परमिशन होती है अगर उसके बाद हमें एक और डिजिट लेनी होती है तो हमें उसको क्या देना पड़ता है 10 देना पड़ता है. ठीक है तो यहाँ आपने जब हमने उससे 2 डिजिट ली तो उससे पहले हमने इसको क्या किया बिकॉज ऑफ दैट कि 1000 को अगर मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 0 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 0 एंड देन नेक्स्ट विल बी अप्लाई द वैसे तो हमारा हो गया टाइम हो गया 12:15 to 1 o'clock.